text. And in between I have been gossiping also, talking of things here and there. I must thank the Department of English of this university who thought of having this session and giving me this opportunity to read out some of my poems. It's something which is very close to my heart, and I feel that as far as I am concerned, the best part of my writing is to me my poetry. Critical writing and all other writings, they come late. So without much of prelude or text, let me come to the poems. I have 3 collections of poems published so far. One was in 1991 called Safar Se Phool. The second came in 1998 called Sirf Swapna Nahi Hai Soch Rahiya. And the recent one came out last year, 2014, called Main Tumhe Bhula Kaha Hu Mahasagar. I will be reading some of the poems from these texts. I have some poems in English too, but if you can enjoy the Hindi ones, I would be happy with these only and would not like to read out English poems. We can think of those poems later on. I will begin with a poem which is dear to Prof.Kalidas. In fact, when he came to Udaipur, we did climb a number of mountains, hills around, and this is a poem which is there in the first collection called Pahad ke baare mein koi kuch nahi kehta. Somehow some of the titles of my poems are long. I don't know why, but could be this is my ignorance and my lack of confidence. But I am so happy today, so happy that Professor Das is there and all our colleagues. Aloka ji is there. In fact, 2006 Bhopal has been a very important year and experience for me, because this collection, the last one, has poems which were inspired there, which were written there, and I'll be reading out some of the poems written here at Sambalpur, this university campus also. So let it be a session of Odisha poems today, and the one, of course, the one I am beginning with is certainly a poem from Rajasthan, from a one place, but poems are universal. So let me begin by reading this lines. पहाड़ के बारे में कोई कुछ नहीं कहता, जब कोई देखता है पहाड़ तो कहता है कि कितना हरा है, कैसा नंगा है। वह पेड़ों की बात करता है जो हैं अथवा नहीं। पहाड़ के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। वह पेड़ों की बात करता है जो हैं अथवा नहीं है, जिन्हें ढोता है अपनी पीठ पर पहाड़। वह नदी की बात करता है जो निकलती है पहाड़ से। ठंडी हवा और बादलों की बात करते हैं लोग। इतनी ऊंचाई तक जिसने पहुंचाया उन्हें कि वे छू सके बादलों को, उस पहाड़ की बात कोई नहीं करता। कोई नहीं पूछता पहाड़ से उसका दर्द, कि तेरे सीने को फोड़कर बहने लगी है जो नदी, वह कहीं तेरी पीड़ा का निर्झर तो नहीं। रुई के कि तेरे सिर पर रुई के फाहे सा बादल का टुकड़ा कितने जख्मों को भर पाता है, कि तेरे सीने में घावों की तरह फैले गह्वर गुफाओं से उठती चमगादड़ों की चित्कार से क्या तेरा भी दुख जुड़ा है। फिर भी किसी से कुछ नहीं कहता, पहाड़ तो बस अचल अटल साधनारत वाल्मीकि सा निर्लिप्त खड़ा है।
आदमी कितने ही शिखरों पर फहरा ले अपनी विजय पताका, पहाड़ फिर भी आदमी से बड़ा है। वह किसी से कुछ नहीं कहता, पहाड़ तो बस अचल अटल साधनारत वाल्मीकि सा निर्लिप्त खड़ा है। आदमी कितने ही शिखरों पर फहरा ले अपनी विजय पताका, पहाड़ फिर भी आदमी से बड़ा है। आदमी के पास पहाड़ को देने के लिए बारूदी सुरंगों के सिवा क्या है? आदमी के पास पहाड़ को देने के लिए बारूदी सुरंगों के सिवा क्या है? और पहाड़ अपने सीने, अपने बाजुओं में जो खजाना लिए है, उसे कुतर कुतर कर ही आदमी विकास की ये सीढ़ियां चढ़ा है। This is one poem, and now I come to this collection and a series of poems which you may call Odisha poems. So I'll be reading only those poems which are written here or which are inspired by this place or Sambalpur, of course. But it is very necessary to write love poetry. And because poetry does sustain love and is sustained by love. So you cannot ignore that. I will read out a very small love poem written in Gopalpur, sir. क्या मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूं? ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें देखता ही रहूं एक टक, पल भर भी नजर न हटे तुम्हारे चेहरे से। ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें देखता ही रहूं एक टक, पल भर भी नजर न हटे तुम्हारे चेहरे से। मैं तुमसे बात भी करना चाहता हूं, पर क्यों शब्द हो जाते हैं गुम जब तुम्हें सामने पाता हूं। तुम्हारा हर रूप अच्छा लगता है मुझे, कभी शांत ध्यान मग्न सा, कभी उफनती भावनाओं सा। बाहें फैलाए तुम भी बढ़ते तो हो मेरी ओर, मैं संकोच से सिमटता क्यों चला जाता हूं। किससे सिमटता? संकोच से। संकोच से। बाहें फैलाए तुम भी बढ़ते तो हो मेरी ओर, मैं संकोच से सिमटता क्यों चला जाता हूं। अनायास जब कभी छू लेते हो मुझे तुम, तब क्यों सनसनी सी छूट जाती है बदन में। मुझे उस चांद से क्यों होने लगती है ईर्ष्या, जिसके आमंत्रण पर दौड़े चले जाते हो तुम। मैं जानता हूं संभव नहीं मेरा तुम्हारा मिलन, कहां थार की जुल्सा देने वाली लू और कहां मखमली बयार। फिर भी तुमसे दूर जाने का ख्याल ही क्यों विचलित करने लगा है मुझे। क्या मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं महासागर। One poem written at Gopalpur, days of visiting the sea and watching the various forms and so on. A poem from Sambalpur. I was told that these hills are called Budharaja hills. No, it's there in Sambalpur. In Sambalpur. Yes, there are some hills in Sambalpur called Budharaja. If you go to the zero point, you have got Barapahad. 12 hills. Yes. So somehow I could gather these phrases. I didn't visit those, but I thought all hills are like similar in a way. Hills in my place and hills here. And I was just sitting at the
stairs of the guest house one night when I came here last, and I saw some fire in the hills. Yeah. It happens in every, Mizoram and Rajasthan and this place, everywhere. There are sometimes some fires in the hills. Now We have a name for this fire. माकड़ भी है Yes. what is that? माकड़ भी है बंदर की शादी Okay. I'll take it down later, right? It's the occasion of, it's actually the occasion when the monkeys marry. And that's the illumination for it. Wonderful. Yeah. So, but it is here slightly in a different note. Yeah. A bit more serious one maybe. बूढ़ा राजा पहाड़ियों पर आग. Actually, it may not be very correct, but don't mind because I am not very much aware. You have been placed in a very difficult context here. Not Context is not important. Tell them, let them forget the context and concentrate on the point. Words. So, बूढ़ा राजा पहाड़ियों पर आग. It could be any hill and fire on the mountain. Yeah, fire. Right? Yes. उस दिन मैं तुम्हारे नीले कर्ण फूल से हुआ था बहुत आकर्षित. उस दिन मैं तुम्हारे नीले कर्ण फूल से with the tops हुआ था बहुत आकर्षित. लगता रहा कई दिनों तक वही रंग मुझे सबसे सुंदर. नीला आसमान, नीला समंदर. सुबह सुबह 12 पहाड़ और बूढ़ा राजा पहाड़ियों का रंग भी हल्का नीला प्रतीत हुआ मुझे. ऐसा ही रहा होगा शायद मलकानगिरी और नियामगिरी की पहाड़ियों का. तुम्हारे कर्ण फूल जितना चटक तो नहीं, पर थोड़ा कालापन लिए, थोड़ा उदास. पास में जो कमल तलाई है उसके सारे कमल जैसे चुरा ले गया. पास में जो कमल तलाई है उसके सारे कमल जैसे चुरा ले गया कोई. पानी पर छितराए पस्त पड़े पत्ते उदास पहाड़ियों की तरह. पर इधर झुरमुटों में कहीं कहीं आग की लपटों की तरह दहक उठे हैं पलाश के लाल फूल. पर इधर झुरमुटों में कहीं कहीं आग की लपटों की तरह दहक उठे हैं पलाश के लाल फूल. मुझे बहुत आकर्षित करते हैं ये तपती दोपहरी में सूरज की राज सत्ता को ठेंगा दिखाते. सामान्य कद काठी के किंतु मजबूत आत्मविश्वास के धनी अपनी जमीन से जुड़े साथी पलाश. मुझे बहुत आकर्षित करते हैं. तपती दोपहरी में सूरज की राज सत्ता को ठेंगा दिखाते. सामान्य कद काठी के किंतु मजबूत आत्मविश्वास के धनी अपनी जमीन से जुड़े साथी पलाश. इधर रात के पहले ही पहर 12 पहाड़ की छाती में सुलग उठी कोई आग. तुम्हारे कंठहार की तरह अर्ध चंद्राकार लाल आग के शोले चमकने लगे तमतमाती पहाड़ियों के वक्षस्थल. तुम्हारे कंठहार की तरह अर्धचंद्राकार लाल आग के शोले चमकने लगे तमतमाती पहाड़ियों के वक्षस्थल पर. कोई नहीं बताता यह आग किसने लगाई. कोई नहीं बताता यह आग किसने लगाई, न कोई बुझाता है उसे. मुझे बहुत बुलाती है यह आग अपनी ओर. मुझे बहुत बुलाती है यह आग अपनी ओर. मैं रोक नहीं पाता अपने कदम बहुत प्रयास के बाद. And then this is a poem which I wrote after going from here. When I went back to my place and I visited Raurkela last time.
And there at the center of the town there is a chalk called Birsa Munda Chalk. And you have a statue of Birsa Munda, who we all know his contribution in history, the tribal movement, and the place where I come from is also a place of tribal movements. Somehow I'm also trying to be a part of those things. So I was inspired to talk about the essential unity between the people of this country. So there's a poem called Birsa Munda Chowk Se. Birsa Munda Chowk Se. आना होता है मुझे यहीं हर बार, आना होता है मुझे यहीं हर बार, कंधे पर तरकश हाथों में तीर कमान लिए, मजबूत पिंडलियां चौड़े सीने और आसमान की ओर नजर उठाए, जन योद्धा के पास आना ही होता है मुझे, आना होता है मुझे यहीं हर बार, कंधे पर तरकश हाथों में तीर कमान लिए, मजबूत पिंडलियां चौड़े सीने और आसमान की ओर नजर उठाए, जन योद्धा के पास विजय सिंह पथिक और गोविंद गुरु का संदेश लेकर. These were the true tribal leaders during the freedom movement in Rajasthan. गोविंद गुरु का संदेश लेकर यहीं तो आना होगा मुझे, अपने पहाड़, अपने जंगल और अपने पानी के लिए, अपनी भाषा, अपने संगीत, अपने खेत और खदान के लिए, संकल्प और बलिदान के अविकल आह्वान के लिए. यहीं से तो गुजरेगा मार्ग, अरावली से उत्कल तक एक जैसी है पहाड़ियां. अरावली से उत्कल तक, अरावली इज इन राजस्थान, अरावली से उत्कल तक एक जैसी है पहाड़ियां. बबूल और पलाश के पेड़, भांति भांति के खनिज, लंबी चौड़ी खदानें, सांवले शरीर और मुट्ठियां ताने मेहनत कर मजदूर. आना ही होता है दरिया को सागर के पास, आना ही होता है दरिया को सागर के पास, जाना होता है जिस तरह हवा की पीठ पर होकर सवार पर्वतों के पास बादलों. आना ही होता है दरिया को सागर के पास, जाना होता है जिस तरह हवा की पीठ पर होकर सवार पर्वतों के पास बादलों को. बहुत सहज, अत्यंत नैसर्गिक है हमारा संबंध, बहुत सहज, अत्यंत नैसर्गिक है हमारा संबंध. सागर से मिलकर दरिया नमकीन नहीं होता, सागर से मिलकर दरिया नमकीन नहीं होता. सागर भी लौटाता है उसकी मिठास, बंद कर बादलों के लिफाफों. सागर भी लौटाता है उसकी मिठास, बंद कर बादलों के लिफाफों में. यूं ही मिलते रहे हम, कभी दरिया बनकर, कभी बनकर बादल. यूं ही मिलते रहे हम, कभी दरिया बनकर, कभी बनकर बादल. भरते रहें एक दूजे में विश्वास, एक नई बेहतर दुनिया बनाने. And I think one more poem. Just go on. Just go on. No, but I mean, Just avoid the reciting person. it could be atrocious, no? I'll read out two more poems. One is one poem which was written December last. I was traveling from Goa back to Udaipur, and the other one I'll read I wrote yesterday. Two more poems. And this is, I think, a poem which might mean something to our children, because we all in our lives are very often sad and depressed because of our failures. I have tried to celebrate my failures in this poem. How do we celebrate failures in life? We all fail, you know. It's very rare that we succeed. It
इट्स कॉल्ड इस तरह हो जाने पर बार बार असफल। इस तरह हो जाने पर बार बार असफल। इस तरह हो जाने पर बार बार असफल, पानी की सतह पर बिखरते बिंबों से रुपहले सपने सहेजता मन, बहुत बार चाहे हो भी जाता हो उदास, निराश नहीं होता। I'll read those lines again, but slightly tricky. इस तरह हो जाने पर असफल, because you cannot succeed in this attempt, whatever is there. इस तरह हो जाने पर बार बार असफल, पानी की सतह पर बिखरते बिंबों से रुपहले सपने सहेजता मन, बहुत बार चाहे हो भी जाता हो उदास, निराश नहीं होता। मैंने तुम्हें पाया ही कब था जो खोने पर हो रंज। अरे मैंने तुम्हें पाया ही कब था जो खोने पर हो रंज, और वह खोना भी कैसा कि तुम निरंतर हो मेरे मन में। मैंने तुम्हें पाया ही कब था जो खोने पर हो रंज, और यह खोना भी कैसा कि तुम निरंतर हो मेरे मन में, आसपास उठती गिरती सांसों में सागर की लहरों की तरह। तुम न पहचानो मुझे, न छूने का दो अवकाश, गहन तिमिर में छिपा लो अपना अवर्णनीय सौंदर्य। तुम न पहचानो मुझे, न छूने का दो अवकाश, गहन तिमिर में छिपा लो चाहे अपना अवर्णनीय सौंदर्य। दूर तारों की छांव में टिमटिमाते दीपक से तुम्हारे नयन पुकारते हैं ना मुझे। तुम न पहचानो मुझे, न छूने का दो अवकाश, गहन तिमिर में छिपा लो चाहे अपना अवर्णनीय सौंदर्य। दूर तारों की छांव में टिमटिमाते दीपक से तुम्हारे नयन पुकारते हैं ना मुझे। तुम तो जानते ही हो कितना नैसर्गिक है संबंध मरुस्थल और समुद्र के बीच। तुम तो जानते ही हो, सी ऑल डेजर्ट्स पर सी समटाइम। तुम तो जानते ही हो कितना नैसर्गिक है संबंध मरुस्थल और समुद्र के बीच। दिस इज रिक्रिएशन ऑफ ए मिथ। जिस तरह सलाइयों से स्वेटर बुनती स्त्री अपने आसपास से बेखबर रचती है अपने भविष्य की कथा। जिस तरह सलाइयों से स्वेटर बुनती स्त्री अपने आसपास से बेखबर रचती है अपने भविष्य की कथा, दुर्वासा के श्राप से भी बेपरवाह। जिस तरह सलाइयों से स्वेटर बुनती स्त्री अपने आसपास से बेखबर रचती है अपने भविष्य की कथा, दुर्वासा के श्राप से भी बेपरवाह। दुनिया के समस्त उलाहनों के बावजूद लौटता हूं मैं बार बार तुम्हारे तट। दुनिया के समस्त उलाहनों के बावजूद लौटता हूं मैं बार बार तुम्हारे तट पर, अपनी अप्रतिम निष्ठा के साथ जानने तुम्हारे गुरु गंभीर गर्जन का मर्म। ये लहरें मरीचिका नहीं है, मरीचिका इज मिराज। ये लहरें मरीचिका नहीं है और न हमारा प्रेम क्षणिक। ये लहरें मरीचिका नहीं है और न हमारा प्रेम क्षणिक। यदि तुम खो भी जाओ तो अपने भीतर तलाश लूंगा। यदि तुम खो भी जाओ तो अपने भीतर तलाश लूंगा तुम्हें, नॉट एडमिटिंग डिफीट, और खो दूंगा स्वयं को, और खो दूंगा स्वयं को तुम्हारी
अतल गहराइयों। So that was a poem, and Professor Chandalia, this, I don't know why poetry is full of so many argumentative lovers who are poets. sometimes It is there with John and company also. The metaphysicals. Yes. You find them. Yeah. Your poems, listening to your poems and the arguments that you place before whoever is your interlocutor, yes. जिसको भी आप बोल रहे हो, जो भी हो, शारीरिक हो या अशारीरिक हो, I think it's a very interesting thing, poetry through irrefutable argument, Yes. turning failures into success. That is what is intended, and I think that is the beauty of it. Yeah. See, accepting failures is very human. No. Defeating failures is poetic. Correct. A poet is never defeated. Never. One who is defeated is never a poet. Can't Great. Poetry is creation. Yes. Our creator can be defeated. Yes. God, can you defeat God? If at all he is there. Yes. You can't. You will create something new. Yes. So, that's me. सर फिर कभी बहस करेंगे, कविता की बात करते हैं, मजे करते हैं, इट्स फॉर एंजॉयमेंट, है ना, बिल्कुल सीरियसनेस नहीं है। आपको जहाँ अच्छा लगे हंसिए, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, बुरा भी लगे तो हंसिए, कोई बात नहीं। Now this is a political poem, very clearly I can admit right at the beginning. I wrote it yesterday, and last 2 days I have been here and I have been reading the papers through. Somehow I get angry. Poets get angry. They must, because these days we are losing our anger. गुस्सा ही नहीं आता है, किसी भी बात के उसमें। So the poem is titled Red Alert के बावजूद. Now red is red. This is red. And this is the color of my choice. वे लोग जो जश्न मना रहे हैं रंग बिरंगी रोशनियों और डीजे की जबरदस्त धुनों पर, वे लोग जो जश्न मना रहे हैं रंग बिरंगी रोशनियों और डीजे की जबरदस्त धुनों पर, फूले मटकाते हवा में उछालते हाथ, किसी न किसी मद में चूर, जानते भी हैं किस बात का है उत्सव। वे लोग जो जश्न मना रहे हैं रंग बिरंगी रोशनियों और डीजे की जबरदस्त धुनों पर, फूले मटकाते हवा में उछालते हाथ, किसी न किसी मद में चूर, जानते भी हैं किस बात का है उत्सव। क्या एक कड़वे समय के गुजर जाने का, या फिर किसी बहुत अच्छे समय के अकस्मात आगमन का। क्या एक कड़वे समय के गुजर जाने का, या फिर किसी बहुत अच्छे समय के अकस्मात आगमन का। इतने जहाज डूब गए एक एक कर, जिसमें नहीं था हमारा एक भी, शायद यही हो खुशी। इतने जहाज डूब गए एक एक कर, जिसमें नहीं था हमारा एक भी, शायद यही हो खुशी। सीमाओं पर इतनी गोलीबारी के बाद भी सुरक्षित हैं सारे पड़ोस। रेड अलर्ट के बावजूद शहर में फैल गया है कोहरा। रेड अलर्ट के बावजूद शहर में फैल गया है कोहरा, सूझता नहीं हाथ को हाथ। सारे कातिल हो गए हैं मुंसिफ और कत्लगाहें पूजा स्थल। सारे कातिल हो गए हैं मुंसिफ और कत्लगाहें पूजा स्थल। कोई छाया सी आती है और चूलें हिलने लगती है हमारी आस्थाओं की। कोई छाया सी आती है और चूलें हिलने लगती हैं हमारी आस्थाओं की। सिर्फ आसमान से बातें करते दिखाई देते हैं अच्छे दिनों की बातें करने वाले लोग। सिर्फ आसमान से बातें करते दिखाई देते हैं अच्छे दिनों की बातें करने वाले लोग।
इस बार दावत में सिर्फ देसी और मुगलई ही नहीं, दुनिया भर की हैं लजीज लाजवाब पेशकशें। इस बार दावत में सिर्फ देसी और मुगलई ही नहीं, दुनिया भर की हैं लजीज लाजवाब पेशकशें। ओबामा आखिर है। इस बार दावत में सिर्फ देसी मुगलई ही नहीं, दुनिया भर की है लजीज लाजवाब पेशकशें। दस्तरखान सजा है जहां पनाह, दस्तरखान सजा है जहां पनाह। बहुत सर्दी है बाहर, भीतर आइए, सेक लीजिए अपने हाथ और आंखें। सेक लीजिए अपने हाथ